Okay, so let's start our class today. So पिछली class में we started the parasitology lecture and we finished the trematodes and we started the cestodes. तो इस lecture में भी हम cestodes continue करेंगे and if time permits we will move on to nematodes. Okay. So कुछ questions cestodes के रह गए हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे रह गए हैं. So let's solve them one by one. Okay, let's start with the first question. The first question is, let me just zoom in a little bit for you people. Okay. The first question is, the cooked rice grain-like segments in calf feces are seen in the infestation with. It should be infection, should not be infestation. So it's the correct form is the infection with. A. Vitellina species, Monesia species, Stylacia species, all of the above. Anyone having any idea? Cooked rice grain like segments, मतलब cestodes में जब feces के through segments निकलते हैं तो एक ऐसी स्पीशीज जिसके सेगमेंट्स बिल्कुल कुक्ड राइस ग्रेन जैसे लगते हैं, पके हुए खाना जो चावल होता है वैसे. हाँ, द करेक्ट आंसर इज मोनीजिया. सो ग्राविड प्रोग्लॉटिड जो होते हैं मोनीजिया के, दे आर ब्रॉड, okay, and they resemble just like the cooked rice grains, Monesia species. Okay. Triangular egg with pyriform apparatus is seen in, I have shown the diagram here, Monesia species, Hymenolopus species, Dipylidium and Taenia. So egg is triangular, you can see, and inside a pyriform apparatus like structure is present. So what should be the correct answer? Yes, the correct answer is Monesia species. Again, Monesia species जो होती है उसमें triangular egg होता है. You can see the diagram, and inside the egg एक structure होता है जिसको हम कहते हैं pyriform structure. ठीक है? So the correct option is Monesia. Okay. The larval stage of Taenia multiceps present in sheep and cattle is cysticercosis, hydatid, Cynorus cerebralis, tenaces. Very, very good. Yeah, it is the correct answer is जो टीनिया मल्टीसेप्स होता है, ये एक सेस्टोड होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो सीनोरस होता है and we call it Cynorus cerebralis. Okay, so the correct option is Cynorus cerebralis. So ये this metacestode it causes GID in sheep. मैंने आपको बोला पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा, it causes GID. बिकॉज इसमें बहुत सारे मेटासिस्टोड्स है, बहुत सारे सिस्टोड्स है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो जस्ट रिमेम्बर विच सिस्टोड किस सिस्टोड का क्या क्या मेटासिस्टोड है या लार्वल स्टेज है. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि जो सीनोरस सेरेब्रालिस है दैट इज अ लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया मल्टीसेप्स. Infection from raw or undercooked fish leads to, very easy question, what should be the answer? I think हाँ, सी लिखा है आप लोगों ने. So C is the correct answer. Diphyllobothrium latum. Raw और undercooked fish से यही infection होता है. Okay. Example of a cestode is Trichuris vulpes, Isospora fellis. See, these are PYQs. So that's why even if they seem to be easy, but you still have to हमें फिर भी solve करना है. Isospora fellis, Ankylostoma caninum, Dipylidium caninum. Option is D, Dipylidium caninum. है ना, Dipylidium caninum एक cestode है ना. ट्राइक्यूरस वेल्पस नेमेटोड है. आइसोस्पोरा जो है दैट इज इन प्रोटोजोआ. एंकाइलोस्टोमा कैनाइनम अगेन अ नेमेटोड. डायपाइलिडियम कैनाइनम जो है ये टेप वर्म है ऑफ डॉग एंड कैट. इट इज अ टेप वर्म ऑफ डॉग एंड कैट. डायपाइलिडियम कैनाइनम. ठीक है, इसको कहते हैं टेप वर्म ऑफ डॉग एंड कैट. Hepatitis cysticercosa in sheep is due to Cysticercus bovis, Cysticercus tuberculosis, cellulose, Cysticercus tuberculosis, Cysticercus fasciolaris. कौन करता है hepatic cysticercosa in sheep? Any idea? Hepatic cysticercosa कौन करता है sheep में? Okay. So it is caused by Cysticercus tuberculosis.
ठीक है ना। तो बेसिकली सिस्टर सर्कस टीनियोकोलस जो है ये टेप वर्म है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लिवर की इन्फ्लेमेशन करता है। इसका जो लार्वल स्टेज होता है, इसके लार्वल स्टेज को हम सिस्टर सर्कस टीनियोकोलस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लार्वा होता है ये लिवर डैमेज करता है, हेमोरेज करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर करता है, एंड दैट्स व्हाई इट कॉजेस ट्रोमेटिक हेपेटाइटिस जब ये लिवर में माइग्रेट करता है, ठीक है ना। बट जो इसका लार्वल स्टेज है दैट इज सिस्टर सर्कस टेन्यूकोलस, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, बट विच इज द दिस इज द लार्वल स्टेज सिस्टर सर्कस टेन्यूकोलस। बट व्हाट इज द सिस्टोड? सिस्टोड का नाम क्या है जिसका ये लार्वल स्टेज है सिस्टर सर्कस टेन्यूकोलस? किसी को पता है सिस्टर सर्कस टेन्यूकोलस किस लार्वा, किस सिस्टोड का नाम है, किस सिस्टोड का लार्वा है बेसिकली? देखो, सिस्टोड अलग चीज है, ठीक है, लेकिन टीनिया हाइडेटिजिना, वेरी गुड। टीनिया हाइडेटिजिना जो है उसका लार्वल स्टेज है सिस्टर सर्कस टीनियोकोलस, और वो लार्वल स्टेज इट कॉजेस हेपेटाइटिस सिस्टर सर्कोसा इन शीप। ओके, क्लियर। Infective stage of broad tapeworm of ruminants is hydatid cyst, Cenorus, cysticercus, cysticercoid. Which is the broad tapeworm of ruminants? Anybody having any idea? Broad tapeworm of ruminants किसको कहते हैं? मैंने अभी एक सवाल किया, जब मैंने पहले सवाल में ही बोला कि जो मोनीजिया स्पीशीज होते हैं वो ब्रॉड शेप्ड होते हैं, राइट। तो उनको हम कहते हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स आल्सो, उनको हम कहते हैं मोनीजिया को हम ब्रॉड टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो मोनीजिया का, हाँ, मोनीजिया एक्सपांसा, मोनीजिया बेनेडिनाई, तो इट्स बोथ, इवन एक्सपांसा, यस। सो व्हाट इज द, उसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा है? हाइडाटिस, सीनोरस, सिस्टिसर्कस, सिस्टिसर्कोइड? वेरी गुड, इसका सिस्टर सर्कोइड है, क्योंकि सिस्टर सर्कोइड जो होता है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। सिस्टर सर्कोइड में डेवलप होता है इन इनवर्टेब्रेट इंटरमीडिएट होस्ट। जो मोनीजिया है उसका इनवर्टेब्रेट इंटरमीडिएट होस्ट है ऑर्बैटिड माइट्स। ओके, दे एक्ट एज द इनवर्टेब्रेट इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मोनीजिया। सो ऑर्बैटिड माइट्स आर इनवर्टेब्रेट्स, तो उनमें डेवलप हो जाएगा सिस्टर सर्कोइड, ठीक है। Intermediate host of Dipylidium caninum are Tenocephalus canis, Rhipicephalus sanguinis, Trichodectus canis, both A and C. बताइए, intermediate host of Dipylidium caninum. So जो Dipylidium caninum है, who's saying B? No, B is the wrong answer. So जो Dipylidium caninum है उसके हमें दो intermediate host है. We have two intermediate host. पहला हमें है डॉग फ्ली, जिसको हम कहते हैं टीनोसेफेलिडस कैनस। कैट फ्ली भी हो सकती है बट मोस्ट कॉमन इज डॉग फ्ली। एंड दूसरा है डॉग लाउस, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोडेक्टस कैनस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, इट इज बोथ ए एंड सी। तो डॉग फ्ली एंड डॉग लाइस बोथ एक्ट करते हैं एज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर डायपाइलिडियम कैनाइनम। तो करेक्ट आंसर इज डी आंसर। Most pathogenic tapeworm of poultry is Relitina echinobothridia, Relitina tetragona, Relitina cestacillus, Davinia proglottina. Very important question. हर एग्जाम में आता है. Most pathogenic tapeworm of poultry. A. A? No. The correct option is D. Davinia proglottina. Davinia proglottina सबसे छोटा, it's the most smallest. एंड इट इज हाईली पैथोजेनिक। क्यों? एक तो ये स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री है। ड्यू टू दैट ये जो पोल्ट्री का जो इंटेस्टाइन होता है म्यूकोजा में पेनेट्रेट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में डीप पेनेट्रेशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पैथोजेनिक टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेविनिया प्रोग्लोटिना। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पैथोजेनिक टेपवर्म ऑफ पोल्ट्री, ठीक है, दोनों चीजें, स्मॉलेस्ट भी और मोस्ट पैथोजेनिक भी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी।